this is C. Sita Sharma. Welcome back to my channel. Today I am starting a series on secretarial audit where I will walk you through the entire process including real life tips, practical exposure, useful formats, common mistakes to avoid and how to draft the MR3 report. So this is episode 1 of the series where I will cover what is secretarial audit, its applicability and some practical insights for the newly qualified company secretaries. So now let's get started. First, let's understand what is secretarial audit. Secretarial audit is a compliance audit which will be done by the practicing company secretary to check whether the company is complying with the applicable laws, rules and regulations. I would say the objective of the secretarial audit is to ensure that company is following the good governance practices and is not exposed to any legal risks or you can say the non-compliance penalties. And if we talk about the final outcome of this audit report is a report called MR3, which is submitted by the secretarial auditor to the company and also filed with the ROC as a part of annual filing. Now let's talk about the applicability of the secretarial audit. As per section 204 of the Companies Act 2013, along with the rule 9 of Companies Appointment and Remuneration of Managerial Remuneration 2014, along with regulation 24A of LODR Regulation 2015. Secretarial audit is applicable on all listed companies and its material unlisted subsidiaries. The second one is it is applicable for all public company who are having a paid up capital of rupees 50 crore or more or turnover of rupees 250 crore or more. And the third one is it is applicable to all companies who are having outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions of rupees 100 crore or more. So there are 3 conditions where secretarial audits are applicable. Now we are going to discuss about some practical insights for company secretaries. The first one is don't trust MCA alone. It means आपको सिर्फ MC पे ट्रस्ट नहीं करना है कि उन्होंने OC4 MGT 7 फाइल किया, डैट मीन्स दे आर कंप्लाइड. इट्स नॉट लाइक दैट. इसका मतलब ये नहीं होता है आपको यू शुड आस्क फॉर फिजिकल रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, आपको ये सब चीज़ें मांगनी पड़ेंगी, आपको सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी. ठीक है. द सेकेंड वन इज़ मैनेजमेंट हमेशा क्या करता है, ट्राई टू हाइड देयर डिफ़ॉल्ट्स. वो आपको अपने डिफ़ॉल्ट नहीं बताएगा. यू हैव टू क्रॉस चेक विद योर ROC डाटा, आपके पास फॉर्म्स, पास चलान्स, आपका जो भी ROC रिकॉर्ड्स है उसके साथ आपको एक क्रॉस चेक करना पड़ेगा तभी. द थर्ड वन इज़ दैट आप जब भी ऑडिट करते हैं तो ऑलवेज कीप अ कॉपी. लाइक आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशंस यूज़ किए हैं, जो भी किया उसकी एक कॉपी आपके. द फोर्थ वन इज़ अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए या आपको किसी चीज़ में डिले हो रहा है तो आप हमेशा कम्युनिकेट करेंगे इन राइटिंग. वॉच आउट RPT ट्रांजेक्शन्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. होता क्या है कि काफ़ी कंपनीज़ में उनको पता नहीं होता RPT के लिए क्या डिस्क्लोजर जाएंगे, रेजोल्यूशंस जाता है नहीं जाता है, और वो सिर्फ RPT करते तो हैं बट उसको कंप्लाइंस नहीं करते हैं. तो हमको बहुत अच्छे से उसको RPT ट्रांजेक्शन्स को चेक करना है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि हम क्या करते हैं, इंटरनल रिकॉर्ड जो होते हैं हमारे, जैसे कि DR2, DR8, MBP1, शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म्स, रजिस्टर, हम क्या सोचते हैं कि इंटरनल रिकॉर्ड है. अगर हम नहीं भी चेक करेंगे तो हम मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ROC के पास कोई प्रूफ नहीं है. बट बिकॉज वी आर गिविंग MR3 रिपोर्ट, सो फॉर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हम उनको बताएं कि आपको DR2, DR8, MBP1, शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म्स वगैरह ये सब आपको करना है. तो एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी ये मत सोचिए कि ये कंपनी कंप्लाइड है, मुझे पता है इसके सारे कंप्लाइंस हो रहे हैं, ये ओके है, छोटी कंपनीज़ है, ऐसा कोई रिस्क वाली बात नहीं है. इट्स नॉट. क्योंकि होता क्या है कि छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, यू आर प्रोफेशनल्स. मतलब अगर आपको कोई प्रोफेशनल हायर कर रहा है दैट मीन्स वो आपको गुड क्वालिटी वर्क के लिए हायर कर रहा है और वो आगे भी आपको याद करेगा आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए. सो आपको अपना 100% देना है. आप जितना कंप्लायंस कर सकते हैं, जितना कंप्लायंस उनको बता सकते हैं और जितना उनकी मिस्टेक्स को बता सकते हैं, वो उनके लिए भी अच्छा है और वो आपके लिए भी अच्छा है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ जब भी आप MR3 प्रोवाइड करवाते हैं, कंपनी आपको बोल रही है कि नहीं आप इसमें क्वालिफ़िकेशन नहीं डालोगे, ओके, सो आपको क्या करना है कि क्वालिफ़िकेशन डालनी है एंड आपको यू यूज़ नॉट हार्श वर्ड, आपको पोलाइट वर्ड यूज़ करने हैं. जस्ट लाइक इट वॉज ऑब्जर्व दैट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड
और इट वॉज अपीयर दैट लाइक दैट, आपको ये चीज़ें वो करनी है।